Good morning, students. My screen is visible. Amisha, Charu, Komal, Pratibha, Sakshi. Screen visible है और voice audible है? Okay, Avantika. Now see, in the last class we have started the second unit, and in that we completed nanotechnology basic part. Okay. Now quantum mechanics we started. In that I told you four effects are there in a quantum mechanics: photoelectric effect, black body radiation, Compton effect, emission of line spectra. First one is a photoelectric effect. What is photoelectric effect in a quantum mechanics? Emission of electron from a metal plate when illuminated by a light or any other radiation of any wavelength or a frequency. It is called photoelectric effect. See, the emitted electron is called photoelectron. This is a diagram. This is a metal plate. Collecting plates ये है. I just suggest to write down और इसका तुम स्क्रीनशॉट ले सकते हो. बट हाँ ये डेफिनेशन लिख लो. क्या होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? सो इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल प्लेट जब इल्यूमिनेट होते हैं लाइट ऑफ एनी अदर रेडिएशंस ऑफ एनी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी, दैट इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. चारू तो फर्स्ट टाइम आई है क्लास में. 2-3 और बच्चे नए हैं. शुभम आज फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहा है. डजंट मैटर, लेट्स सी. मेटल प्लेट पे इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होने से जो इल्यूमिनेशंस रिड्यूस होते हैं उसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और जो इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको हम फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं. दैट्स इट. और कलेक्टिंग प्लेट्स किस तरह से मूव हो रही है ये 2 लाइन लिख लो. फिर डायग्राम तो तुम बनाना चाहते हो तो बनाओ. नीचे का तो सिर्फ मैं एक्सप्लेन करूंगी. द डेफिनेशन इज इम्पोर्टेंट. एक्चुअली मैं वही चीज बोलती हूँ लिखने को जो इम्पोर्टेंट हो, बाकी तो तुम कर सकते हो. लिख लिया बेटा? प्लीज लेट मी नो व्हेन यू कंप्लीट. अमीशा, अवंतिका, चारू, कोमल, प्रतिभा, साक्षी, शुभम. Done? Okay. This is a diagram. You can take the screenshot of this. अब एक्सपेरिमेंटल फाइंडिंग फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात करें तो देयर इज नो टाइम लैग बिटवीन द अराइवल ऑफ लाइट एट द मेटल and the emission of photoelectron. Our voltage is going to increase to a certain value. That is, the photocurrent reduces to 0. Increase in the intensity, increase the number of photoelectrons, but the electron energy remains the same. इस तरह से बता रहे हैं कि वोल्टेज के रिस्पेक्ट में एनर्जी इज गोइंग टू बी सेम, and at frequency below a certain critical frequency, no electron is going to be emitted. आइंस्टीन का जो फोटो इलेक्ट्रिक एक्सप्लेनेशन है उसमें उसने यही बताया है,
The energy of incident photon is utilized in two manners. How? Part of energy is used to free the electron from atom, that is going to known as photoelectric work function, that is W naught. Another part जो use हो रहा है, that is providing kinetic energy, that is to emitted electron, that is 1/2 mv square. तो अगर on the whole अगर हम आइंस्टीन photoelectric equation की बात करें, please write down this. HV is nothing but W naught plus half mv square. इसको ही फर्दर इन्होंने किया है, तुम तो ये लिख लो बस, और लिख लो दिस इज आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन. आई जस्ट सजेस्ट यू टू राइट डाउन दिस आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक एक्सप्लेनेशन को ये लिख सकते हो कि टू वेज में इसको यूटिलाइज करते हैं, 1 और 2, और फिर एच बी इक्वल्स टू ये लिख. आई एम गिविंग यू टू राइट डाउन, बट यू जस्ट लेट मी नो व्हेन यू कंप्लीट. थोड़ा थियोरेटिकल है ये सब्जेक्ट एक्चुअली, थोड़ा क्या पूरा ही थियोरेटिकल है. यू नीड टू हैव पेशेंस व्हाइल अंडरस्टैंडिंग दिस. Completed? निखिल, प्रतिभा, साक्षी बताना जब हो लिखना हो जाए तो. Now it comes photons. Photons क्या होते हैं? Einstein postulate the existence of the particle. लिख लिया बेटा? Completed? Okay. So that is photon, which result in photoelectric experiment. और इसको हम एक्सप्लेन कैसे करते हैं? EP is HV, HC upon lambda. So Einstein postulated the existence of the particle, जिसे हम photon कह रहे हैं, और photon has zero rest mass. I just suggest to write down this formula and this. Photon has zero nest mass, which travels at a speed of a light. ठीक है, बस ये लिखना है कि फोटोन क्या है, दिस फॉर्मूला.
and photon has zero rest mass which travel at a speed of a light. Okay. जल्दी लिखो. आज मैं चाह रही हूँ कि तुम्हारा क्वांटम मैकेनिज्म और श्रोडिंगर इक्वेशन हो जाए. डन. ओके अवंतिका. अब नेक्स्ट है कॉम्पटन इफेक्ट. अभी अपन ने सबसे पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखा. सेकेंड इज अ कॉम्पटन इफेक्ट. When a monochromatic beam of X-ray is scattered from a material, then both the wavelength of a primary radiations and the radiation of higher wavelength that are found to be present in the scattered radiation. The presence of modified radiation in scattered X-ray is called the Compton effect. ये इस तरह से इन्होंने बताया है कि इंसिडेंट फोटोन आए, रिकॉइल्ड हुए, यहाँ पे स्कैटर्ड हो गए. तो इस तरह से जो स्कैटर्ड एक्सरे रहते हैं उसे हम कॉम्पटन इफेक्ट कहते हैं. आई जस्ट सजेस्ट टू टेक स्क्रीनशॉट बिकॉज अपना सिलेबस अभी काफी रह गया है. लिखने का टाइम मैं दूं तुम्हें तो बहुत ज्यादा लाइक. ठीक है. तो कॉम्पटन इफेक्ट में कुछ नहीं है, सिंपली यही है कि जो भी हमारी इंसिडेंट फोटॉन्स रहते हैं व्हेन इट कम एंड गेट स्कैटर्ड in the form of photons, that X-ray is known as Compton effect. Take the screenshot. But yes, you need to explain. Incident photon is EHV, PHV upon C. How it is coming, that is one theta angle is there, phi angle is there. And then it is scattered photon, so HV dash upon C. Here is a scattered photon, here is a recoiled electron. ये वाली पार्ट इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना तुम्हारा एक्सपेरिमेंटल श्रोडिंगर इक्वेशन है, तो अपन उसमें ही ज्यादा ध्यान देंगे. पेयर प्रोडक्शन क्या होता है? व्हेन अ फोटोन ऑफ सफिशिएंट एनर्जी passes through the near of field of nucleus, it materialize into the an electron and positron. इस फेनोमिना को पेयर प्रोडक्शन कहते हैं. जैसे ये फोटोन है, ये न्यूक्लियस पॉजिटिव है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये भी इलेक्ट्रॉन है. तो व्हेन अ फोटोन सफिशिएंट एनर्जी पास करके फील्ड में जाता है और एन इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन प्रोड्यूस करता है, उसे पेयर प्रोडक्शन कहते हैं. In this process, charge, energy and momentum remains conserved prior and after the production of pair. Means pair production is nothing when photons get the positive energy and passes through the nucleus. So ये क्या मटेरियलाइज करता है? एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन. ये इलेक्ट्रॉन है तुम्हारा, ये पॉजिट्रॉन. इसको पेयर प्रोडक्शन कहते हैं. टेक द स्क्रीनशॉट, दैट इज आल्सो इम्पोर्टेंट. ये कुछ टर्म्स है जो तुम्हें आगे यूज में आएंगे, बाकी इस पे डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आते. ठीक है. ये हो गया पेयर प्रोडक्शन. पेयर प्रोडक्शन से हमें एक इलेक्ट्रॉन एक पॉजिट्रॉन प्रोड्यूस होता है. पेयर एनहिलेशन की बात करें तो व्हेन एन इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन इंटरैक्ट, ई प्लस और ई प्लस, ई माइनस और ई प्लस दोनों इंटरैक्ट होते हैं ईच अदर. तो ये क्या करते हैं? ड्यू टू देयर अपोजिट चार्जेस both the particles can inhalitate, converting their mass into electromagnetic energy.
in the form of gamma rays, that is gamma plus gamma photon. Charge, energy and momentum are again conserved. Pair annihilation is nothing. When my positron and electron merge together, interact together, it produces gamma ray photon. That is pair annihilation. Take the screenshot. स्क्रीनशॉट लेके फिर तुम लिख लेना, अभी इतना टाइम अपन नहीं कर पाए, ठीक है? इज इट क्लियर? और अगर तुम्हें लिखना है तो तुम कह सकते हो निखिल, प्रांजल, प्रतिभा, जया, अवंतिका, अर्पित, अमीशा। आज अदिति नहीं है? ठीक है, ये सब एक्स्ट्रा मटेरियल है, ये तुम्हारे काम का नहीं। यस, यस। Wave function. What is the meaning of wave function? The quantity with which quantum mechanism is concerned is a wave function of the body. और wave function को हम किससे डिनोट करते हैं? Xi से. It is a quantity associated with moving particle and it is a complex quantity. Xi square is a proportional to the probability of finding a particle at a particular point at a particular timing. Xi square is xi multiplied by xi. तो वेव फंक्शन सिर्फ ये लिख लो, इसमें यहाँ मैं जरूर कहूंगी क्योंकि श्रिडिंजर पूरा वेव फंक्शन पे ही डिपेंड है. क्वांटिटी विथ विच क्वांटम मैकेनिज्म कंसर्न, उसे हम वेव फंक्शन ऑफ बॉडी कहते हैं. और xi इज माय वेव फंक्शन जिसमें क्वांटिटी एसोसिएट होती है विद अ मूविंग पार्टिकल, दैट इज इट इज अ कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी. ठीक है. xi इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ एम्पलीट्यूड. xi इज नथिंग बट a प्लस आई बी, जहाँ xi स्टार जो है a माइनस आई बी हो गया, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया xi स्टार और इन दोनों को, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया. तो xi का स्क्वायर क्या रहेगा? जनरली a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. आई स्क्वायर जो है माइनस को प्लस कर दे. तो वर्क फंक्शन का प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड क्या आएगा? ये आ जाएगा. ठीक है. इज इट क्लियर? इफ आई बिकम फास्ट प्लीज इंटरप्ट मी. अब बात आती है, ये वेव फंक्शन हो गया तुम्हारा और इसका एम्पलीट्यूड वेव फंक्शन का ये आ गया. अब नॉर्मलाइजेशन की बात आती है, तो xi स्क्वायर इज अ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी और प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल विद इन द एलिमेंट ऑफ द वॉल्यूम इज xi स्क्वायर डेल्टा. सो नॉर्मलाइज अगर मुझे करना है तो नॉर्मलाइज की इक्वेशन क्या होगी बेटा तुम लोगों की? दिस वन, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी xi का स्क्वायर डेल्टा इक्वल्स टू 1. Since the particle is definitely be somewhere, so the normalization is going to be like this. Okay, a wave function that obeys this equation is said to be normalized. This is a normalized equation. ठीक है. अब बात आती है properties of wave function. I just suggest write down this. It must be finite everywhere. It must be single valued. It must be continuous and have a continuous first derivative everywhere. Finite का मीनिंग क्या होगा? xi is infinite for a particular point. It mean an infinite large probability of finding the particle at that point. ठीक है. Single valued का मतलब क्या होगा? It mean more than one value of probability of finding the particle. ठीक है. Continuous में del xi upon del x, del xi upon del y, del xi upon del z. That is with reference to x, y, z, it should be continuous.
एंड नॉर्मल है Z। ये इसकी प्रॉपर्टी है। तो एक तो ये लिख लो शॉर्ट में, दिस वन 1 2 3 और ये नॉर्मल है। दैट्स इट। फटाफट लिखो। लिख लिया क्या बेटा? ओके। नाउ कम्स योर मेन इक्वेशन, श्रोडिंजर्स टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन। ये तुम्हारा इंपॉर्टेंट है आरटीयू एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और मिड टर्म के हिसाब से। वन डायमेंशन वेव इक्वेशन फॉर द वेव्स एसोसिएटेड विद अ मूविंग पार्टिकल। ठीक है, जाई एक्स टी को हम लिखते हैं ए ई टू द पावर माइनस आई अपॉन एच ई टी माइनस पी एक्स, और जाई एक्स ऑफ टी 0 इक्वल्स करते हैं तो इसकी वैल्यू ये आ जाती है। मैं पूरा टाइम दूंगी इसको करने के लिए, लेकिन तुम्हें थोड़ी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी बेटा, है ना। तो थोड़ा सा जैसे ये इक्वेशन लिख लो, यहाँ जाई जो है वेव एम्पलीट्यूड है फॉर अ गिवन एक्स, ए जो है वो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है, लेमडा तुम्हारी वेवलेंथ। ठीक है, इज इट क्लियर? ये तुम्हें बुक और नेट पे भी मिल जाएगा, लेकिन मैं तुम्हें करा रही हूँ, लेकिन यू नीड टू बी बिट फास्टर इन राइटिंग, और इधर टेक द स्क्रीन। यहाँ से हमारा श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन का जो है डेरिवेशन स्टार्ट हो रहा है। जाई एक्स टी को इस तरह से शो करते हैं, और ये है, तो जाई इज अ वेव एम्पलीट्यूड गिवन एक्स के लिए, और ये ठीक है। सो फ्रॉम इक्वेशन 1, ये मेरी इक्वेशन 1 है, तो उससे क्या होगा, जाई डेल स्क्वायर जाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इज नथिंग बट माइनस 4 पाई स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर जाई। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो या लिखते जाओ, जैसे भी 2-2 मिनट के लिए स्क्रॉल करूंगी मैं। और सारे लेक्चर्स तुम्हारे एज आई गेट टाइम, ओके अर्पित, आई विल अपलोड ऑन यूट्यूब चैनल। ठीक है, अब लेमडा क्या होता है हमारा, एच अपॉन एम नॉट वी स्क्वायर, 1 अपॉन एच स्क्वायर क्या होगा, एम इसका इनवर्स करके स्क्वायर करेंगे तो वो क्या हो जाता है,
एम नॉट का स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। फाइन। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2m0 1/2m0 वी का स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। ठीक है, क्या किया? कुछ भी नहीं किया, 2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दिया, फिर इसको बाहर ले लिया, 2m0 बाहर हो गया तो हाफ एम वी स्क्वायर क्या होता है तुम्हारा 1 अपॉन एच स्क्वायर 2m0। ये जो है k is a constant, k is a ke for the non-relativistic case. Suppose E is the total energy of the particle and V is the potential energy of the particle. Then ये वाली चीज किससे रिप्लेस हो जाएगी? तुम्हारे k से। फिर अगेन तुम किससे रिप्लेस कर सकते हो? 2m0 अपॉन एच स्क्वायर, k is going to replace by E minus V, where E is the total energy of particle minus the potential energy of the particle. That is going to be equation 3. इक्वेशन 2 कौन सी है? ये वाली तुम्हारी इक्वेशन 2। इक्वेशंस को ध्यान से लिखना। इक्वेशन 2 है, फिर ये आ गया लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन m0 v, और ये k की जगह क्या हो गया? e माइनस v। इक्वेशन 3। नाउ इक्वेशन 2 बिकम्स, इक्वेशन 2 ये जो है ये क्या हो जाएगी? रुको, यहाँ तक लिख लिया था तुमने? सी यू कैन टॉक ऑल्सो, फील फ्री इन माई क्लास। ये वाला तो कर लिया था, ये वाली इक्वेशन सारी लिख ली है क्या तुमने? अर्पित, अवंतिका, जया, कोमल, निखिल, साक्षी, शुभम, लिख लिया? ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर है, कहाँ पर है? इक्वेशंस 2 जो है 3 ये आ गई थी। अब इसके बाद इक्वेशन 2 में अगर हम ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, कौन सी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं? इक्वेशन 2 में क्या है? 4 पाई स्क्वायर अपॉन लेमडा स्क्वायर जाए, सो लेमडा स्क्वायर की जगह ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी? इक्वेशन 2 क्या हो जाएगी तुम्हारी? डेल स्क्वायर। ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, 15 मार्क्स का RTU में आता है। कुछ चीज जो इंपॉर्टेंट नहीं है वो मैंने पहले ही स्किप कर दी, जो इंपॉर्टेंट है वो इंपॉर्टेंट है। डेल स्क्वायर जाए अपॉन डेल डी एक्स स्क्वायर इज व्हाट? अपन ने एच स्क्वायर की जगह वो वैल्यू रख दी तो क्या आ जाएगा? -4 पाई स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर 2m0 e माइनस वी जाए। फिर ये सारी वैल्यू हम इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा डेल स्क्वायर जाए अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2m0 अपॉन एच स्क्वायर e माइनस वी जाए का स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ठीक है, and this is nothing but time independent Schrödinger wave equation for particle of a mass m0, total energy E, potential energy V and moving along x axis। ठीक है, ये तो 2D के लिए। अगर 3D के लिए रहता है तो फिर क्या बनेगा? लिखते जाओ बेटा, ना 3 डायमेंशन का केस होता तो फिर इसमें क्या आता? देखो ये सेम इक्वेशन रहेगी लेकिन इसमें y z और आ जाएगा, डेल स्क्वायर जाए अपॉन एक्स डी एक्स स्क्वायर प्लस डेल जाए स्क्वायर अपॉन डी वाई स्क्वायर प्लस डेल जाए स्क्वायर अपॉन डी जेड स्क्वायर प्लस 2m0 अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी। सी वन डिफरेंस तुम लोगों ने किसी ने पूछा नहीं। सी हियर इज एच स्क्वायर और यहाँ एच हल्का सा डैश करके स्क्वायर है। दिस इज नथिंग बट 4 pi square upon h square। h square upon 4 pi square is nothing but h dash square। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तुम्हारी, लिख लो फटाफट। कंप्लीटेड तो फर्दर मॉडिफाइड होगी। हो गया अर्पित? स्क्रीनशॉट ले रहे हो बेटा? चलो अच्छा, जो भी लो ले, तुम्हारे पास इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। अब 3 डायमेंशन में इसको इस तरह से लिख के हम
डेल से भी डिनोट कर सकते हो. तो दिस इज अनदर फॉर्म, डेल स्क्वायर जाई प्लस 2m स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस बी जाई इक्वल्स टू 0. ये क्लियर हो गया. एच डैश स्क्वायर क्या है तुम्हारा, एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर है ना. ठीक है. और फिर हम ये 3 डायमेंशंस को, इन चारों को डेल स्क्वायर जाई से रिप्लेस कर सकते हैं. वेयर माई डेल इज नथिंग डी स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर डी वाई स्क्वायर डी स्क्वायर डी जेड. ठीक है. So this is time independent Schrodinger's wave equation for particle in a 3-dimensional space which used to come for 15 marks. फ्री स्पेस की अगर हम बात करते हैं जहाँ v 0 हो जाता है तो हमारी श्रोडिंजर इक्वेशन जो है वो क्या हो जाएगी, डेल स्क्वायर जाए प्लस 2m0 अपॉन एच डैश स्क्वायर ई जाए. v 0 हो जाएगा फ्री पार्टिकल के केस में, तो ये इक्वेशन ये हो जाएगी. ठीक है. इज इट क्लियर. ये लिख लो, फटाफट लिखो. हो गया अर्पित, प्रतिभा. श्रोडिंगर टाइम वेव इक्वेशन, अगर फर्दर इसको हम एक्सप्लेन करते हैं अवंतिका, यस, वेव इक्वेशन फॉर फ्री पार्टिकल एक्स डायरेक्शन में. मेन जो अपनी इक्वेशन का डेरिवेशन है वो यहाँ कंप्लीट हो गया. अब तो ये फर्दर उसको स्प्लिट वे में लिनियरिटी सुपरपोजिशन. पार्टिकल इन अ बॉक्स में तुम्हें कल कराऊंगी. कल अपन जो क्लास है वो 10:30 लेंगे. आज तो मेरी DIP लैब थी. कल टाइम जो रहेगा वो 10:30 रहेगा तुम्हारी क्लास. ठीक है. आज अपन ने क्वांटम मैकेनिज्म और श्रोडिंगर इक्वेशन कंप्लीट करी है. पार्टिकल इन अ बॉक्स अलग से टॉपिक है, उसमें करेंगे टुमारो. फर्स्ट वी विल डू डेंसिटी ऑफ स्टेट. सी कई चीजें विकिपीडिया पे मिली, कई लिंक्डइन स्लाइड शेयर पे, बट somehow I try to provide you all information. ठीक है. डेंसिटी ऑफ स्टेट की बात करेंगे, फिर पार्टिकल इन अ बॉक्स, देन बैंड थ्योरी है. अभी तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं इसमें. लेट्स सी. नाउ प्लीज गिव अटेंडेंस. दैट्स इट फॉर टुडे. टुडे वी कंप्लीटेड श्रोडिंगर इक्वेशन. टुमारो विल डिस्कस डेंसिटी ऑफ स्टेट. ठीक है. 2D 1D जो भी है वो डिस्कस करेंगे. इसके अलावा बहुत सारे टॉपिक हैं. अभी तो बैंड थ्योरी है, डेरिवेशन ऑफ कैनिंग पॉल मॉडल है, रिंग पैनी मॉडल और ये सब. ठीक है. एक बार अटेंडेंस दे दो, हो जाएगा. रिलैक्स. थोड़ा सेल्फ पढ़ना भी स्टार्ट कर दो उसमें. अर्पित फर्स्ट क्लास. अवंतिका. Yes, ma'am. चारू फर्स्ट क्लास. Yes, ma'am. कहाँ थी चारू इतने दिन से. जया फर्स्ट क्लास. कोमल. निखिल. Yes, ma'am. प्रांजलि. प्रतिभा. Yes, ma'am. साक्षी. Yes, ma'am. शुभम. Yes, ma'am. ओके. टुमारो डेंसिटी ऑफ स्टेट एंड पार्टिकल इन अ बॉक्स डिस्कस करेंगे. उसके बाद क्रनिंग पैनी मॉडल है,
ब्रिलियंट जोन है, लेकिन ये सब फिजिक्स से रिलेटेड है और थोड़ा तुम्हें ऐसे ही लगेगा बोरिंग सा, बट हैव पेशेंस एंड एंजॉय स्टडी। ठीक है, ये यूनिट थोड़ा ऐसा है। इसके बाद तुम्हें थर्ड और फोर्थ यूनिट यू विल एंजॉय, उसमें नैनो स्केलिंग है, फिर एफिन फैट वगैरह, वो बहुत ही इजी और बहुत अच्छा लगे। बट उसका जो बेसिक है वो यही सेमीकंडक्टर फिजिक्स और ये सब है, तो ये पढ़ना जरूरी है। बट आई जस्ट सजेस्ट यू अटेंड ऑल द क्लासेस, बिकॉज तुम्हें ये बुक या पीपीटी से पढ़ के समझ में नहीं आएगा। थोड़ा जैसे आज श्रोडिंगर इक्वेशन, जैसे मैंने 3 डायमेंशन और ऐसे बताई, थोड़ा तो आ गया ना, थोड़ा और पढ़ोगे तो आ जाएगा। बट बिल्कुल ब्लैंक माइंड से अगर बुक से या इससे पढ़ोगे तो नहीं आएगा। सो बेटर टू अटेंड ईच क्लासेस। ओके, और असाइनमेंट काफी बच्चों ने अभी जमा नहीं करे हैं, वो सब भी अटेंड सबमिट करो। ठीक है, ओके, सी यू, टेक केयर।